learning outcome is, students, you will be able to recite this poem with proper rhythm and intonation. You can see the page number 11 of your textbook. Here this is 11 number page and आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेकर बैठ जाइए. I am going to ask some questions. Be ready to give answers. The first one is, solve this riddle. Where can you find cities, streets, towns and shops but no people? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ शहर हैं, गलियां हैं, नदियां हैं, लेकिन लोग नहीं हैं? सोचो सोचो बच्चों. और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. How many marks did you get in your last examination in English? बताओ बताओ. हाँ बेटा, आपके 70%. Very good. And your 63%. Good. और आपके 53%. Not so good. But the next question is here for you. And who scored the highest in your English subject in the whole class? Salim, very good. आपने 93% स्कोर किया. अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों. पर अब मैं एक जो क्वेश्चन पूछ रही हूं अब आपसे, आप सभी से ये क्वेश्चन है, इफ यू गेट दैट क्वेश्चन पेपर नाउ, अब आपको यदि वही क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो क्या आप अपनी मिस्टेक्स ठीक कर लोगे? हाँ, डेफिनेटली. इफ यू गेट अनदर चांस टू ब्लॉट आउट योर मिस्टेक्स, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. और यही सक्सेस जो है हमें आगे और आगे और आगे और आगे ले जाती है, दुनिया में हमारा नाम करती है. You can now listen the story of the King Robert the Bruce and the Spider. एक बार की बात है, एक राजा थे, उनका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस. उनके लिए ये टाइटल दिया गया और वो बहुत ही महान थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश को शत्रुओं से बचाया था. He saved his land from enemies and tried very hard to do that. But being defeated in a battle, एक बार वो अपने राज्य की रक्षा करते करते दुश्मनों से हार गए. फिर क्या हुआ बच्चों? He escaped from the battlefield and hid out in a cave. और एक केव में जाकर छिप गए. वहां he remained for 3 months and in despair he wanted to quit the land. अपनी जगह वो छोड़ना चाहते थे, बिना किसी को बताए वहां से चले जाना चाहते थे, क्योंकि he felt humiliation at that time. और उन्होंने उसी समय क्या देखा, जब वो केव से बाहर निकल करके जाने वाले थे, he saw a spider. It fell down from time to time, but at last it succeeded with its web. At the same time, he also decided, Robert the Bruce also decided to retry his fight, and at last he got success. So this story tells us that we should never quit. और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. So today's thought: never quit. Winners never quit and quitters never win. These are the words of Vince Lombardi. इस पोयम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी थीम भी यही है कि वी शुड नेवर गिव अप एंड वी शुड हैव होप इन डिस्पेयर. और इस पोयम को किसने लिखा है, ये हम जानकारी लेते हैं. शी इज द पोएटेस and her name is Helen Steiner Rice. Helen Steiner Rice was an American writer of religious and inspirational poetry. Children, she was born on
19 May 1900 in Lorain, Ohio, United States, and she died on 23 April 1981 in Lorain, Ohio, United States. और उन्होंने जो उनकी जॉनर थी, उनकी जो विधा थी, वो थी क्रिश्चियन एंड गॉस्पेल। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारे गीत लिखे। उनके पेरेंट्स कौन थे बच्चों? लेट अस सी हियर। जॉन स्टाइनर वाज हिज फादर एंड एना बेरी स्टाइनर वाज हर मदर। एंड यू कैन सी हियर वन थिंग। अब जैसे फ्लू फैला हुआ है बच्चों, इन द 1918 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, चल रहा था एक्चुअली, तब एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी हुई थी। उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस तरह अभी कोविड-19 चल रहा है। अब हम अपनी पोयम की तरफ बढ़ते हैं और आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस पोयम। Try to follow me and try to repeat after me. How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. Another chance। बच्चों, हमने अभी ये कविता पढ़ी, अब इसको एक बार और रिसाइट करते हैं धीरे धीरे। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. अच्छा लगा चिल्ड्रन? बहुत खूबसूरत पोयम है और we should never give up in despair. This is beautifully portrayed in this poem. Now do the explanation. Get started now. How often we wish for another chance? हम अक्सर दूसरे मौके की इच्छा करते हैं, विश करते हैं। विश मीन्स इच्छा, अनदर मीन्स एक और, चांस मौका। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, क्या बनाने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? फ्रेश, ताजी शुरुआत करने के लिए। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक a fresh beginning. In the poem, the poetess wants to say that we should always, and we are always, aspire that we should have another chance. क्या करने के लिए? हमारी गलतियां सुधारने के लिए हमें एक मौका चाहिए होता है। भगवान भी हमें एक मौका देता है। So we are human beings. तो हमें तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए और खुद भी हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले ताकि हम पहले की हुई सारी गलतियां अपनी सुधार सकें। जैसे दोबारा प्रश्न पत्र मिलने पर आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं।
अ चांस, मौका, टू ब्लॉट आउट। ब्लॉट आउट का मीनिंग होता है बच्चों, किसी जैसे गलती हमने की तो गलती को आच्छादित कर देना, गलती को बिल्कुल ढक देना। जैसे यहाँ एक आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और ये बादल है। सूर्य हम इसको अपनी गलती मान लेते हैं, और जब बादल इसको पूरी तरह ढक लेता है तो हम कहते हैं क्लाउड इज ब्लोटिंग आउट द सन। ब्लोट आउट मीन्स यहां हो गया बिल्कुल ढक लेना। तो हम अपनी गलतियां भी ढकना चाहते हैं, हम अपनी गलतियां भी मिटाना चाहते हैं। कैसे? चेंज फेलियर इनटू विनिंग। हम अपने फेल को, हम अपने फेलियर को, अपनी असफलता को विजय में परिवर्तित करके। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है बच्चों जब हम अपनी मिस्टेक्स को ना दोहराएं, and we should get another chance to blot out our mistakes because we are human beings. हम human beings हैं, हम क्या कर सकते हैं? सफलता भी पा सकते हैं और असफलता भी पा सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आप मान लो you are going on a right path. It doesn't mean that you will not get failure. At that time you can also win. We proceed further for the winning of the race, but sometimes we get failure at that time. तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें वो चांस की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने फेलियर को विनिंग में बदल सकें. So here the poetess wants to say that we should have the passion to never give up. We often want chance in our lives. We want कैसा चांस? Another chance for the amendment in our failures, for the amendment of our mistakes. It is important to fail बच्चों. फेल क्यों इम्पॉर्टेंट है? फेल होना क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ लाइफ. जब हम असफल नहीं होंगे तब तक हम सफलता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते. सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं. जैसे सुख और दुख भी दो पहलू हैं, उसी तरह सफलता यदि हमें मिलती जाएगी तो असफलता क्या होती है इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन. ही वॉज फेल्ड for more than 10,000 times when he was making his light bulb, or finally he found the material that worked for lighting the bulb. फिर उसके बाद क्या हुआ? एक रिपोर्टर उनके पास गया तो रिपोर्टर ने पूछा, क्या पूछा? Why were you failed for 10,000 times? तो उन्होंने उत्तर में जो दिया वो उत्तर सुनिए आप. I have not failed. I found the 10,000 ways which won't work in lighting the bulb. तो देखिए फेलियर में भी उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढ ली, and this positivity leads us to the success, to our goal. आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के जीवन में क्या होना चाहिए? समय का सदुपयोग. कैसे कर सकते हैं? अपनी सक्सेस पाने के लिए हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए. खेलना, खाना और अभ्यास करना यही आपका कार्य है. आप अपने गोल को फिक्स करिए, उसके बाद उसके लिए प्रयास करिए. यूटिलाइज योर टाइम फॉर मेकिंग अ गुड कैरियर. स्पेंड योर टाइम इन डूइंग समथिंग न्यू. स्पेंड योर टाइम इन डूइंग समथिंग क्रिएटिव. स्पेंड योर टाइम इन डूइंग व्हाट इंटरेस्ट यू. जो आपकी इच्छा हो, जो आपका बहुत इंटरेस्ट जिस चीज में हो, आपको वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट रहता है उस कार्य में हम कार्य करते हुए बोरियत महसूस नहीं करते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं. यदि कोई पेंटर बनना चाहता है तो उसे पेंटिंग का ही अभ्यास दिन और रात करना चाहिए. खेलना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी. बट क्या करना भी चाहिए? अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए भी प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए. तो पोएटेस हेलन स्टैनर राइस वांट्स टू से हियर दैट वी शुड हैव another chance to make a fresh beginning
we should have a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. The next line is, it does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. Here, the poetess wants to say that there are lots of obstacles in our lives, but we should never give up and we should never think that this is the end of the world. This is not all over and this is not over. Still you are breathing, still you are taking breathe. So you are alive. Do fast. Make your journey again as a refreshed one. Never वो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें क्या सफलता हमारी है उसके पीछे हमें भागना चाहिए. असफलता के बारे में कभी विचार करना ही नहीं चाहिए. जब भी आपको मौका मिले तब आप फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं एंड ब्रांड न्यू स्टार्ट. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे. एक दिन में आप ये महसूस नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है. पूरा दिन नहीं आपको उस पर व्यतीत करना है कि अगला कदम आपका क्या होगा. आपको तुरंत ही निर्णय लेना होता है ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए. Everyone goes through tough times. It is better to get up and keep pushing. Try to live a better life, not by repeating the same faults. If someone hurts you, forgive him. It only takes a deep desire. आपके मन में एक अंदर से डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डीप डिजायर होनी चाहिए, मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. यू कैन टेक हेयर द एग्जाम्पल ऑफ राइट ब्रदर्स. राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था बच्चों? फ्लाइट, एरोप्लेन. व्हेन दे वर मेकिंग द फ्लाइट अ रियलिटी, एवरीवन laughed at them and everyone ridiculed at them. बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दे प्रूव्ड द वर्ल्ड रॉन्ग. उन्होंने ये कहा, देखिए अब हमने जो उड़ने की मशीन बनाई है इसको एक रियलिटी में चेंज कर दिया गया है और एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया. इसी तरह द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू. यू कैन सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड. जिस तरह सूरज अंधेरा खत्म कर देता है उसी तरह द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू एंड यू कैन शाइन इन द वर्ल्ड बाय गेटिंग सक्सेस. टू लिव अ लिटिल बेटर. हमें अपने जीवन में अग्रसर ही अग्रसर होना चाहिए. लिटिल बेटर, अ लिटिल थोड़ा सा, बेटर और अच्छा, पहले से अच्छा हमें जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित होना चाहिए. And to always be forgiving. If someone hurts you, forgive means किसी को क्षमा करना. क्षमा कैसे कर सकते हैं? हम उसकी बातों पर ध्यान ही ना दें, हम अपने गोल पर ही अग्रसित रहें. जैसे यदि आपके मदर फादर आपको कुछ कह देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स. उन्हें हक है आपको सही और गलत में फर्क महसूस कराने का. आप जब सही पाथ पर अग्रसर होंगे तो आप में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको क्या मिलेगा? सक्सेस. यू आर राइट. फेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेल? अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, इफ यू गेट फेलियर एट एनी स्टेप ऑफ योर लाइफ, तो डोंट बी फुल ऑफ डिस्पेयर. तब हमें क्या करना है? इस फेल को रिमाइंड करना है दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. और यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं और यदि वहां आपको बोल देते हैं नो वैकेंसी, तो उस नो का क्या मीनिंग होता है? उसे भी पॉजिटिव हमें लेना चाहिए. NO, द मीनिंग ऑफ NO हेयर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब आप एक देख सकते हैं इम्पॉसिबल वर्ड है. इम्पॉसिबल वर्ड में पॉसिबल खुद ही छुपा हुआ है. इम्पॉसिबल में से आपको पॉसिबल करके दिखाना है. एंड इफ समबडी सेज इट इज द एंड ऑफ योर कैरियर, तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं
कि एफर्ट नेवर डाइज, इसमें भी हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। व्हेन यू आर अलाइव यू कैन डू बेटर एंड बेटर इन योर करियर। जिस तरह से हमने अभी थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण देखा, जिस तरह से हमने अभी राइट ब्रदर्स का उदाहरण देखा, तो उसी तरह से हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ग्रेट souls like Prophet Muhammad, Aristotle, Steve Jobs, and many more are Indians like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru never faced any anxiety or difficulties. Of course, बच्चों, सभी के जीवन में डिफिकल्टीज आती हैं और सभी को कहीं ना कहीं फेलियर फेस करना पड़ता है, बट इट डजंट मीन कि उन्होंने अपनी होप छोड़ दी। तब तक नहीं छोड़ी जब तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल गई, जब तक उन्होंने अंग्रेजों को अपने इंडिया से बाहर नहीं कर दिया, तब तक उन्हें जो है अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित वो होते रहे। द नेक्स्ट वन इज टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। हमें इस दुनिया में सनशाइन फैलानी है, इस दुनिया में अपना नाम कमाना है। तो क्या करना है? इस दुनिया में हम रहते हुए अपने आप को विकसित कर सकें, अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जा सकें। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, डिस्पेयर मीन्स निराशा। हमें निराशा में कभी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड थिंक यू आर थ्रू। हर एक के जीवन में यह पद आता है, हर एक के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन यू आर थ्रू, आप उससे गुजर चुके हैं। आप ये सोच करके अगला कदम बढ़ाइए। And for there is always a tomorrow. We know that Swami Vivekananda told, do your work as worship without attachments to the results. And there is no shortcut to hard work. These are the words of Mother Teresa and the hope of starting anew. You can start anything at any time, at any moment, at any stage of your life. So children, the world is waiting for you and never give up in despair. This was the message and this was the central idea of the poem. हेलन स्टैनर राइस ने बहुत खूबसूरती से इस पोयम को लिखा और हमने इसमें जाना कि राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं। देखिए, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपस में उच्चारण में एक जैसे प्रतीत हों। पोएट या गीतकार अपनी कविता में ऐसे तुकांत शब्द, ऐसे ब्यूटीफुल पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं जिससे उनका पोयम या उनके जो गाने हैं वो सुनने में अच्छे लगे। जब सुनने में अच्छे लगते हैं तो याद भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये हमारे संगीत का भी नियम है कि जो चीज हमें अच्छी लगेगी वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो हमारे यहाँ पोएटेस हेलन स्टैनर राइस ने भी कुछ राइमिंग वर्ड्स का यूज किया है, जैसे बिगिनिंग एंड विनिंग। दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग टुगेदर एंड इन द सेकेंड स्टेंजा यू कैन हियर सी स्टार्ट एंड हर्ट। These two words are rhyming together. In the next stanza, forgiving and living. These two words are rhyming together. Look here children, here are new words. जो आपकी कविता में नए वर्ड्स आए हैं उनको हम यहाँ देखते हैं और उनका मीनिंग भी जान लेते हैं। The first one is begin. B-E-G-I-N. Begin. Begin means shuru. The next word is desire. Desire means इच्छा या मंशा. D-E-S-I-R-E. The next word is despair. Despair means निराशा. D-E-S-P-A-I-R, जिसे हमें अपनी लाइफ में कभी नहीं लाना है। और फेलियर. फेलियर तो मिलते रहते हैं लेकिन हमें सक्सेस में उनको चेंज करना है. F-A-I-L-U-R-E. फेलियर. फेलियर मीन्स असफलता. फॉरगिव. F-O-R-G-I-V-E. क्षमा करना. द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेश. F-R-E-S-H मीन्स ताजा. Often. O-F-T-E-N. Often. Often means अक्सर.
द नेक्स्ट वर्ड इज मिस्टेक, गलती। मिस्टेक मीन्स गलती। आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं टी, लेकिन ये टी साइलेंट है। कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो साइलेंट होते हैं लेकिन लिखने में प्रयुक्त होते हैं। अब राइमिंग वर्ड्स जैसा हमने पोएम में भी जाना कि क्या होते हैं और यहाँ कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए आप। A rhyme is a repetition of similar sounding words occurring at the end of lines in the poems or songs. बच्चों, जैसे एक महिला सुंदर सुंदर आभूषणों का प्रयोग करती है ताकि वो खूबसूरत दिख सके, इसी तरह गीतकार भी अपने इन आभूषणों का प्रयोग करते हैं पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके। ये उनके आभूषण हैं, जैसे सिमिली, फिगर्स ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन। और इस पोएम में आए हुए ये वर्ड्स तो अभी हमने देखे थे, बिगिनिंग, विनिंग, स्टार्ट, हर्ट, फॉरगिविंग एंड लिविंग। ये राइमिंग आपस में इनकी वर्ड्स की हो रही है। अब यहाँ पर ये 4 वर्ड्स देखिए, 8, फेस, चिन, न्यू। इनके आगे 3-3 ऐसे शब्द दिए गए हैं जो इनको राइम कर रहे हैं, जो उच्चारण में एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। जैसे 8, अब हम लोग इसको गा के देखते हैं तो अच्छा लगेगा। बोलिए आप मेरे पीछे पीछे। 8, डेट, गेट, ग्रेट, फेस, लेस, ट्रेस, ग्रेस, चिन, बिन, ग्रिन, पिन, न्यू, ड्यू, स्यू, फ्यू। आया ना मजा? The question and answers here. The first question is, why do we wish for another chance? The answer is, we wish for another chance to make a fresh beginning. The next question is, what does it take to make a brand new start? The answer is, it takes a deep desire to make a brand new start. The next question, why should we never give up in despair? हमें कभी निराशा में अपना ध्येय या अपना गोल नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि we should never give up in despair because there is always a hope to start everything afresh and there is a new tomorrow. The next question is, what lesson do we learn from the poem? The answer, you can see here, although we commit mistakes and face failures, there is always a hope for a next chance in our lives. We must have a strong desire to try and make our life and our world better. एक्टिविटी बच्चों, यहाँ पोएम के जो लाइनें हैं उनके 2-2 टुकड़े किए गए हैं। उस लाइन को आपको पूरा करना है और वो लाइन कैसे पूरी होगी? जब आप इस पोएम को लर्न कर लेंगे। और यहाँ बुक भी आप सामने देख सकते हैं। और लेट अस डू दिस एक्टिविटी। A chance to blot out, it is, yes, this line completes with this our mistake. The next one is, it only takes a deep desire. The next is, to add a little sunshine. The next one is, so never give up in despair. ये हमारी कविता की 4 लाइनें हैं जो अब मैच करने के बाद पूरी हो गई हैं। The next, message decoding. Here you can see बच्चों, लेटर्स क्या होते हैं आप बताइए? लेटर्स वो साउंड होती है जो प्रत्येक अल्फाबेट में दिए जाते हैं ताकि किसी भी भाषा को लिखने में और सुनने में कन्वर्सेशन के दौरान हम उन साउंड्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें। तो ये जो लेटर्स हैं वो हैं हमारे इंग्लिश में 26 और जो अल्फाबेट है वो उसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स सारे हैं, तो हमारे 26 लेटर्स हैं। और यहाँ हर एक लेटर को एक नंबर दिया गया है। ए को 1 दिया गया है, इसी तरह जेड को 26 नंबर दिया गया है। तो यहाँ 1 से लेकर के 26 नंबर्स हैं और ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं। अब हमें करना क्या है? A number has been given to each letter of the alphabet in the table below. Read the table and decode the message. The first one has been decoded. Never, जब यहाँ हमारे पास नंबर हैं तो उनके ऊपर क्या लेटर आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया।
तो ये हमारा आया नेवर। द नेक्स्ट वन इज गिव, द नेक्स्ट अप। इसी तरह आप और भी कई वर्ड्स बना सकते हैं। इन 26 लेटर्स के द्वारा तो इतनी बड़ी डिक्शनरी बनी है बच्चों, तो आप कई इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं और इस तरह से लेटर बनाते रहिए और वर्ड्स बनाते रहिए लेटर की सहायता से, और आपके पास बहुत अच्छा एक अमाउंट हो जाएगा इस तरह से डिकोडिंग करने का। एंटोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? विलोम शब्द। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके एंटोनिम्स हैं सक्सेस, फेलियर, ओल्ड, न्यू, शालो, डीप, नेवर, ऑलवेज एंड बिगिनिंग, डिस्पेयर, होप। अब आपको ये लर्न भी करने हैं। यहाँ आपके लिए असाइनमेंट की अब बारी आ गई। आपको करना क्या है? एक तो पोयम लर्न करनी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत पोयम हेलन स्टैंडर राइस ने लिखी है, तो उसे लर्न करना तो बनता ही है। राइट 10 लाइन्स अबाउट द इंसिडेंट विच चेंज्ड योर लाइफ। जब भी कभी आपको असफलता मिली हो, उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, वो आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, मीन्स इंग्लिश में लिखना है 10 लाइन्स। और अप्रिशिएट द पोयम इन योर ओन वर्ड्स। अपनी भाषा में, अपनी इंग्लिश में, आप जैसी भी इंग्लिश जानते हैं उसमें आपको ये लिखना है। टुडे वी लर्न, आज हमने क्या क्या सीखा? टू रिसाइट द पोयम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यूज ऑफ द पोएट, टू डिकोड द मैसेज। अगली कक्षा में हम इसी समय मिलेंगे आपके साथ। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपना काम करते रहिए। बड़ों की सहायता से अपने काम को अंजाम दीजिए। तब तक अगली कक्षा तक धन्यवाद।